In this video, we are going to solve two columnar cash book. We are going to learn about how to record the cash transaction in two columnar cash book with columns of discount and cash. So, illustration number 2. Let's start. Prepare two columnar cash book, cash and discount columns of Shri Girish Bhai from the following transactions. 2015 March 1st. Opening cash balance rupees 8,000. First of all, the heading cash book of Shri Girish Bhai for March 2015. First date 2015 March 1. To balance brought down और opening balance. Amount वाले कॉलम में 8,000. Next is date 4. Goods of rupees 6,000 purchased at 10% trade discount. Only cash discount is recorded in cash book. Trade discount is not recorded, but the amount is recorded. Which amount? Net amount after deduction of trade discount from cost. So here 6,000 के goods जो है वो 10% ट्रेड डिस्काउंट में परचेज किए. नाउ 6,000 के 10% 600 deducted from 6,000 is equals to 5,400, which is net amount. Now purchase. Because of purchase, goods comes in and cash goes out. Cash goes out. That's why recorded on credit side. 2015 March 4. Payment. Which payment? By purchase account and the column of amount 5,400. Next is date 7. Goods of rupees 3,000 sold to Praveen for cash at 5% cash discount. Cash sales or 5% cash discount. First of all, 3,000 के goods and 5% cash discount minus 3,000 के 5% 150 2850. ये जाएगा डिस्काउंट वाले कॉलम में एंड दिस अमाउंट इज गोज टू अमाउंट कॉलम. 3,000 के गुड्स 5% कैश डिस्काउंट से सेल किए. सो दिस इज कैश सेल्स. फर्स्ट डेट 7 टू सेल्स अकाउंट डैश डैश डिस्काउंट अलाउड. अब यहाँ पे डेबिट क्यों हो रहा है? सेल्स किया, कैश सेल्स किया और हमने उसको कैश डिस्काउंट दिया, यानी कि हमें इतने कम अमाउंट मिलेगी हमें, यानी कि कोई भी बिजनेस और बिजनेस के लिए जो सेल्स करता है और डिस्काउंट अगर हम देते हैं तो द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज एक्सपेंस फॉर द ट्रेडर, expense for the businessman. That's why it is discount allowed. 150 to sales account 150 in the column of discount allowed. ट्रेडर ने कस्टमर को डिस्काउंट दिया. अगर ट्रेडर कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा है विच इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस, दैट्स व्हाई डेबिटेड टू कैश बुक अकाउंट. 150 डिस्काउंट अलाउड. अब उसको कितने रुपए मिलेंगे? 2,850 recorded in the column of amount. Clear? Next is date 10. Goods of rupees 4,000 sold for cash at 10% trade discount and 5% cash discount. 4,000 के goods minus 10% trade discount 400, 3,000 and 600 minus 5% cash discount. Goods of 4,000 sold, यानी कि 3,600 के 5% which is 180. 3,420 कितनी कैश मिलेगी, इतना देंगे हम डिस्काउंट. आर यू गेटिंग क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल 4,000 के गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट से सेल किए. 10% 4,000 के 10% 400 डिडक्टेड फ्रॉम 4,000 so we get 3,600 net amount.
अब नेट अमाउंट के ऊपर 5% कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होगा, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा। नाउ 3600 के 5% इज 180, दिस इज कैश अलाउड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेल 180 के डिस्काउंट एंड 3420 कैश। 4000 के गुड्स 10% रेट डिस्काउंट से सेल किए, 5% कैश डिस्काउंट से सेल किए, सो अब बिजनेस को अमाउंट मिलेगी ओनली 3420। बाकी का जो ये 180 है वो डिस्काउंट, विच इज डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट इज डेट 12, furniture of rupees 5000 is purchased from Gopal Furniture Mart. यहाँ पे the word cash is not mentioned and the name of Furniture Mart, name of the person is mentioned. That's why this is credit transaction. Cash book में only cash transactions ही record होते हैं, so these transactions will not recorded in cash book. Next is 15, date 15. Rupees 1000 paid to Vishnu towards full settlement of rupees 1020. It means that विष्णु को 1020 रुपए देने थे, हमने विष्णु को दिए ओनली 1000, डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव, दिस इज बेनिफिट फॉर बिजनेस, दैट्स व्हाई क्रेडिटेड। फर्स्ट डेट 15 किसको दिए, कैश बाय विष्णु अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव यानी कि 1020 पे करने थे, उसके बदले 1000 पे किए, 20 इज डिस्काउंट रिसीव्ड, बेनिफिट दैट्स व्हाई क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड वाली कॉलम में 20 एंड द अमाउंट व्हिच इज पेड टू विष्णु इज 1000। नेक्स्ट इज रुपीज 900 पेड फॉर कमीशन, डेट 16 बाय कमीशन अकाउंट एंड रुपीज 900। 18 date, rupees 1500 received from Kamlesh towards full settlement of 1516। कमलेश के पास से ट्रेडर को रुपए लेने थे 1560, कमलेश ने ओनली पे किए 1500, so 60 is discount allowed which is expense for business। Date 18 to कमलेश account 60, ये क्या हो गया, डिस्काउंट। कमलेश ने 1560 के बदले ओनली 1500 पे किए, सो हमने उसको डिस्काउंट दिया 60 का, विच इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस एंड द अमाउंट वाली कॉलम में 1500 विच इज एक्चुअली पेड बाय कमलेश। डेट 20, पेड रुपीज 2000 फॉर सैलरी एंड 400 फॉर वेजेस, बोथ आर एक्सपेंस। डेट 20 बाय सैलरी अकाउंट 2000, same date 20 by wages account 400, cash book credit side। Date 23, goods of rupees 2000 purchased from Vishwa for cash at 10% rate discount and 10% cash discount। goods of 2000 के goods 10% trade discount यानी कि 200 less, 1800 minus 10% cash discount 180। so 2000 के गुड्स जो है वो परचेज फ्रॉम विश्वा से परचेज किए with 10% rate discount। first of all 200 deducted, so the net amount will be 1800। उसके ऊपर 10% rate cash discount, so 1800 के 10% is 180 deducted from 1800, so we have to pay 1620। Date 23 by purchase account discount received यानी कि 1800 जो नेट अमाउंट थी उसके ऊपर 10% कैश डिस्काउंट हमें मिला, which is discount received, so 180 in the column of discount received and we have to pay only 1620 in the column of amount। next is cash of rupees 4000 brought in business। अब बिजनेस में जो है वो कैश लेके आ रहा है कौन, पार्टनर बिजनेस में अगर कैश लेके आ रहा है which is known as
capital cash comes in, that's why debited to cash account. Date 26 to capital account and the amount is 4,000. Next is machine of rupees 8,000 is purchased from Maheshwari Engineering, for which 5,000 is paid and the balance amount is agreed to be paid after 1 month. This is the partial credit and partial cash transaction. कैश बुक में उतना ही रिकॉर्ड होगा जितना एक्चुअल में पे किया है। पूरा ट्रांजैक्शन क्रेडिट करके कहाँ पे रिकॉर्ड किया होगा? इन सब्सिडरी बुक्स और जर्नल प्रॉपर। बट हियर मशीन ऑफ रुपीज 8,000 इज परचेज बट 5,000 इज पेड, तो हम सिर्फ 5,000 की ही इफेक्ट देंगे विच इज एक्चुअल पेड अगेंस्ट फर्नीचर। डेट 30, डेट 28 बाय मशीनरी अकाउंट and 5,000 which is actually paid for the purchase of machine। सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो चुके हैं। नाउ टोटल, फिर डेबिट साइड का टोटल ऑलवेज ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड का टोटल कम होगा ऑफ द कॉलम ऑफ कैश एंड बैंक। डिस्काउंट का टोटल सिर्फ करना है, डिस्काउंट का टोटल टैली नहीं करना है। टोटल डिस्काउंट अलाउड इज 390, टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड इज 200। एज इट इज जितना टोटल आ रहा है टोटल के कॉलम में उतना ही लिखना है। नाउ द टोटल ऑफ अमाउंट कॉलम 19,770, सेम टोटल विल बी अप्लाइड हियर 19,770। उसमें से ये सारे अमाउंट करनी है माइनस, so we get closing cash balance 3,450। Date 31 last day by closing balance और balance carry forward to next month। फिर यहाँ पे 2015 April 1 to opening balance 3,450। तो ये था कैश एंड डिस्काउंट टू कॉलमनर कैश बुक। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम कैश एंड बैंक कॉलमनर कैश बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए, अपनी नोटबुक में लिखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।